गवर्नमेंट को पसंद नहीं आपका काम, दूसरा एडवोकेट एंगेज कर लिया उनको। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि दो द गवर्नमेंट इज नॉट कंपेल्ड, is not bound to supply me the reasons, but there must exist a cogent reason. मैं किसी बिना cogent reason के exist किए मैं मुझे terminate नहीं किया सकता, my lord. I was asked by the local MLA, my lord, who is also a cabinet minister, my lord, to help 4 people in getting bail, my lord. My lord, these 4 people are accused of gang raping a blind girl, my lord. My inner voice could not permit that, my lord. So I categorically denied it. The very next day, when I came to my office, I was handed over this termination letter, my lord. ये background है, my lord, इस केस का। कुछ ही दिन पहले मुझे 15,000 का अवार्ड दिया गया है क्योंकि मेरी पैरवी मैंने बहुत अच्छी की थी। 27 साल की सजा दिलाई मैंने दलित डकैती के केस में, मालूम। आप एक तरफ मुझे 15,000 से मुझे अवार्ड करते हैं, प्राइज मनी देते हैं, और उसको कुछ ही समय बाद आप मुझे विदाउट गिविंग एनी नोटिस, कोई कारण, मालूम, माय ओनली सबमिशन इज दैट, मालूम, आई एम चैलेंजिंग द ऑर्डर ऑफ टर्मिनेशन, मालूम। मालूम, I was appointed as additional public prosecutor in 2005, मालूम. And after completion of probation, my lord. Why did you array this principal district judge, session judge as party here? My lord, because is my lord, your appointing authority? My lord, district and session judge plays a, my lord, crucial role in the appointment of public prosecutors, my lord. What role? My lord, they are consulted at every stage, my lord. तत्काल प्रभाव से पदमुक्त किया जाता है। My lord, I have been terminated by this non-speaking single and order, my lord. इसलिए तो आपका वो देखना पड़ेगा ना, अपॉइंटमेंट ऑर्डर क्या है। my lord, पेज 19 पे है, my lord. जिला मुख्यालय सागर के लिए आदेश दिनांक से 3 वर्ष के लिए अथवा 62 वर्ष की आयु पूर्ण होने जो भी पहले हो तक की कालावधि के लिए लोक अभियोजक के पद पर नियुक्त कर रहा है। एज एन एडवोकेट यू हैव बीन अपॉइंटेड, द गवर्नमेंट प्लीडर, my lord. हाँ, अब ये देखिए, यह नियुक्ति कालावधि के पूर्व किसी भी समय बिना कोई कारण बताए निरस्त की जा सकती है। My lord, my lord, my lord, this position has already been settled by the Honorable Supreme Court, my lord, in Sri Lekha case, my lord, and that observation has been continuously followed by the division bench. चेंज ऑफ काउंसिल की एप्लीकेशन आती ना, my lord, उसमें क्या सुनवाई होती है? my lord, ये श्री लेखा केस में गवर्नमेंट को पसंद नहीं आपका काम, दूसरा एडवोकेट एंगेज कर लिया उन्होंने, यही तो किया इसमें। my lord, ये my lord, श्री लेखा केस में यही हेल्ड किया गया है कि द पोजीशन ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द प्राइवेट काउंसिल, my lord. मैं आपको इसमें काइंडली कम टू पेज रूल 19 clearly says that after the completion of the probation, confirmation would be made, and then the appointment would be made for 3 years, my lord. Now rule 21, termination of term. My lord, Government may at any time before the expiry of the normal term without assigning any reason dispense with the services of the, you are not appointed, you have been engaged, my lord, services of a public prosecutor, government pleader, additional public prosecutor, additional government pleader without giving him any notice. my lord. My lord, this is what the Supreme Court has. अगर आपको रिजाइन करना है तो आपको 1 महीने का नोटिस देना my lord, my lord, दिस इज द लॉ। my lord, this is what Whether Supreme Court in Sri Lekha case. Sri Lekha's case has considered Detail, my lord, in detail. these rules, These- Madhya Pradesh rules, It is regarding the UP government, my lord. मध्य प्रदेश रूल्स को कंसिडर किया है क्या? My lord, kindly come to page 10, my lord. The observation of the Supreme Court, my lord. मैं पढ़ देता हूँ एक बार क्या हुआ इसमें. That the appointment and the engagement of district government counsel is not the same as that by a private litigant of his counsel, and there is obviously an element of continuity, my lord, of the appointment, unless the appointee is found to be unsuitable either by his own work, conduct or age. और हमारी जो पोजीशन है that is completely different from that of the private litigant. Go by the wordings of your appointment letter and the rules. My lord, Both provide for termination without any notice. It's not, it's disengagement, that's all. my lord, I could be terminated without any notice, without any so cause notice, my lord. That is clear, my lord. But the interpretation made by these courts, my lord, the Honorable Supreme Court and the Honorable this High Court, my lord, my lord, The roles of the government. my lord, आपको engage किया गया है for a certain remuneration. and for a term of 3 years, my lord. My lord, kindly come to page 9, my lord. This is the observation of the division bench of this Honorable High Court, my lord. Kindly come to page 9, my lord. ये पद्माकर पांडे का केस है, इसमें ऑब्जर्व किया गया है कि in order that the talented and competent members of the legal profession are attracted to accept the assignment as government pleader, it is necessary that Rule 17 and 18 governing initial period of probation followed by confirmation and minimum 3 years appointment have to be rigorously followed, my lord. This procedure has to be rigorously followed, my lord. Rigorously कहाँ इसमें illegality कहाँ है इसमें? Illegality है, my lord. My lord, let me briefly tell the background which led to the passing of this. Probation confirmation. हाँ, मेरा अपॉइंटमेंट हुआ, my lord. मैं पिछले 20 साल से अपॉइंटेड हूँ, my lord. और हर बार मेरा 3 साल के लिए रिन्यू हो जाता है. Earlier I was the as additional government pleader. Then in 2021 I was appointed as the government pleader, my lord. Now, my lord, what happened that
मैंने केवल 1.5 साल ही अपना टर्म कंप्लीट किया है मालूम। नाउ आई विल ब्रीफली टेल द एक्चुअल बैकग्राउंड व्हिच लेड टू द पासिंग। गवर्नमेंट के बिल पे है किसको मालूम विल पे नहीं है मालूम। लेट मी अलाउ मालूम, प्लीज अलाउ। ऑफिस में क्या है, मालूम एजी ऑफिस में क्या होता है? जी। कभी और भी इसमें निकाल देते हैं, कभी भी अपॉइंट कर देते हैं। मालूम कर देते हैं मालूम, बट मालूम दिस सेम सिचुएशन विथ यू आल्सो। मालूम इसमें मेरा ये कहना है मालूम, आप एक बार देखें मालूम कि अंडर विच बैकग्राउंड आई वाज टर्मिनेटेड। मालूम हुआ क्या है कि बिफोर फ्यू डेज They are not supposed to assign any reason. They are not supposed to call you, ask you. Malord, they are not supposed to assign any reason, but Honorable Supreme Court clearly says that there must exist a cogent reason. Though they are not You are not in service. आपका ऐसा अपॉइंटमेंट कोई सिलेक्शन। Malord, but I am in a public office, Malord. You have been engaged. Malord, this is the public office, Malord. Honorable Supreme Court has clearly settled this position that the office of the public prosecutor is a public office, Malord. Kindly come to this. आपका रेगुलर सिलेक्शन होता ना, तब तो बात अलग। Malord, मैं पब्लिक ऑफिस मान लो, आप पेज 10 पे आइए मालूम, ऑब्जर्वेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट मालूम। इसमें क्लियरली कहा है कि दैट ऑल गवर्नमेंट काउंसिल्स आर पेड रेम्यूनरेशन आउट ऑफ द पब्लिक एक्सचेकर एंड देयर इज अ क्लियर पब्लिक एलिमेंट अटैचिंग टू द पोस्ट ऑफिस मालूम। फर्दर मालूम सुप्रीम कोर्ट क्लियरली कह रहा है कि जो मेरा ऑफिस है दैट इज पब्लिक ऑफिस मालूम, मैं इसको एक प्राइवेट लिटिगेंट की तरह वो नहीं कर सकते मालूम, प्राइवेट काउंसिल की तरह। मोरओवर मालूम सुप्रीम कोर्ट कहता है कि दो द गवर्नमेंट इज नॉट कंपेल्ड is not bound to supply me the reasons, but there must exist a cogent reason. मैं किसी बिना cogent reason के exist किए मुझे terminate नहीं किया जा सकता मालूम। This is the settled position by the Honorable Supreme Court and the division bench of this Honorable High Court मालूम। I have also cited the judgments मालूम in the petition। मालूम मैं आपको बैकग्राउंड मालूम On assigning of reasons or non-communication thereof may be based on public policy, but termination of an appointment without the existence of any cogent reason, furtherance of the object for which the power is given to be arbitrary, therefore against public policy. मालूम मैं मतलब एट दिस जंक्शन मालूम एक बैकग्राउंड भी बता दें थोड़ा सा। मालूम क्या हुआ है, श्रीलेखा वाला केस है, उसमें सारे पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को एन मार्क्स टर्मिनेट कर दिया गया था, इसको सुप्रीम कोर्ट ने अदरवाइज लेते हुए ऑब्जर्व सभी को एक साथ पूरा वहाँ सभी को किया था मालूम, वहाँ सभी को किया था। लेकिन वो जो पोजीशन है वो हमारे यहाँ पे फॉलो की गई है मालूम। पद्माकर पांडे केस में, फिर राकेश तिवारी केस में, राजन तिवारी केस में वो हमारे यहाँ भी फॉलो की गई है वो सिमिलर पोजीशन। इसमें मालूम हुआ ये है कि बिफोर द फ्यू डेज बिफोर द पासिंग ऑफ दिस इम्प्यूग्ड ऑर्डर मालूम, आई वाज आस्क्ड बाय द लोकल एमएलए मालूम, हु इज आल्सो अ कैबिनेट मिनिस्टर मालूम, to help 4 people in getting bail malord. Malord, these 4 people are accused of gang raping a blind girl malord. My inner voice could not permit that malord, so I categorically denied it. The very next day when I came to my office, I was handed over this termination letter malord. ये background है malord इस केस का। एंड मालूम आप देखेंगे पेज नंबर 25 पे आए मालूम, कुछ ही दिन पहले मुझे 15,000 का अवार्ड दिया गया है क्योंकि मेरी पैरवी मैंने बहुत अच्छी की थी। 27 साल की सजा दिलाई मैंने दलित डकैती के केस में मालूम। आप एक तरफ मुझे 15,000 से मुझे अवार्ड करते हैं, प्राइज मनी देते हैं, और उसको कुछ ही समय बाद आप मुझे विदाउट गिविंग एनी नोटिस कोई कारण मालूम, माय ओनली सबमिशन इज दैट मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी कोजेंट रीजन फॉर माय टर्मिनेशन मालूम। आपने वो रूल भी तो चैलेंज नहीं किया ना? कौन सा मालूम? ये रूल 21 मतलब रूल तो क्लियर नहीं, रूल तो एज इट इज रहेगा जब तक उसको आप चैलेंज नहीं करोगे। मतलब उस रूल उसमें भी सेम चीज थी कि नो नोटिस इज रिक्वायर्ड। मतलब नोटिस इज नॉट रिक्वायर्ड बट रीजन मस्ट एग्जिस्ट मालूम। दिस इज द ऑब्जर्वेशन ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट मालूम। मैं नहीं कह रहा कि आप मुझे रीजन बताइए मुझे क्यों हटाया गया, लेकिन रीजन मस्ट एग्जिस्ट मालूम। दिस इज माय सबमिशन मालूम। और मुझे पता है कि देयर इज नो रीजन इन दिस पर्टिकुलर केस मालूम, कोई रीजन नहीं है, केवल मैंने उनके लेवल पे उनकी वेल पे मैंने काम नहीं किया इसलिए मुझे टर्मिनेट कर दिया ऑन द वेरी नेक्स्ट डे मालूम। आप देखेंगे मैंने लेटर ऑफ अप्रिसिएशन भी लगा रखे हैं पार्टी बना मालूम। डीजे साहब को इसलिए पार्टी बनाया मालूम, आप रूल्स देखेंगे तो जब अपॉइंटमेंट होता है वहां पे डीजे कंसल्ट किया जाता है, प्रोबेशन कंफर्म होता है वहां पे डीजे कंसल्ट किया जाता है, फिर हमारे एनुअल सीआर लिखी जाती है उसमें डीजे कंसल्ट किया जाता है। टर्मिनेशन के पहले डीजे को थोड़ी कंसल्ट किया जाता है, टर्मिनेशन नहीं किया जाता मालूम। मालूम तो इसमें अगर देखिए अलग अलग हो गए ना कंसल्ट। मालूम मेरा ये कहना है कि अगर मुझे आउट ऑफ दी विदाउट ऐसा है आपने डीजे को पार्टी बना के इसको डिवीजन बेंच में ले आए। मालूम आप पुराने ऑर्डर देखें मालूम, सिंगल बेंच का केस है ये। मालूम सिंगल बेंच का केस नहीं मालूम, पुराने अर्लियर केसेस भी हुए हैं। अरे आप देखिए, पुराने मत दिखाइए, हम लोग तो अपना जो सामने है उसको देखते हैं। मालूम पुराने ऑर्डर्स गलत भी तो हो सकते हैं ना, करेक्ट है एकदम। कैटिन ऑफ जजमेंट्स है मालूम, कैटिन ऑफ जजमेंट विल नॉट ये अगर किसी पुराने केस में डीजे को पार्टी बनाया तो इसमें बनाना जरूरी थोड़ी है। आपका क्या रोल है डीजे का इसमें? मालूम कैटिन ऑफ जजमेंट्स है मालूम, इसमें डीजे को पार्टी अदरवाइज ये प्रूफ अपील का नुकसान है इसमें। एक आपकी राइट ऑफ अपील इज टेकन अवे इफ यू आर कमिंग डायरेक्टली टू द डिवीजन बेंच। तो मालूम मैं एक एप्लीकेशन मूव कर दूंगा डीजे को पार्टी हटाने के लिए, है ना। और लेकिन मालूम इसमें एक कल भी हमने आपको बताया था ये मालूम जुरिसडिक्शन सिंगल बेंच का। हाँ, जैसे ही हटाएंगे तो हम क्यों सुने इसको।
My lord, if we see the, Single bench- my lord, my humble submission is, my lord, that if we see the catering of judgments of this honorable High Court, my lord, हमेशा डीजे एक नेसेसरी पार्टी रहा है, my lord, इसमें से। क्या ठीक है, चलो हम नोटिस भी कर दें, पर अब हमारा जुरिसडिक्शन नहीं है। डीजे इज नॉट ए कंपलसरी पार्टी। It's a necessary party, my lord। नहीं, सवाल ही नहीं उठता। क्या रोल हर स्टेज, my lord, हर स्टेज पे डीजे कंसल्ट किया जाता है। डीजे रिपोर्ट भेजता है, वही रिपोर्ट आगे जाती है, उसी के बेसिस पे हमारा टर्मिनेशन रीअपॉइंटमेंट होता है। गवर्नमेंट पूछती है डीजे से कि ये हम नाम प्रपोज कर रहे हैं, इनके बारे में आप बताइए जी। बस। नहीं सर, जो एप्लीकेशंस आती है उनको प्रोसेस डीजे करते हैं, पूरा पैनल तैयार होता है, फिर वो कलेक्टर किया जाती है, उसमें से वो सेलेक्ट करके कुछ चुनिंदा नाम या वो अपने तरफ से भी कोई नाम जोड़ सकते हैं। वो जो लिस्ट डीजे से जाती है वो फाइनल नहीं होती, final वो नहीं दूसरी- ना फाइन वो सजेस्टिव होती है कि फिर my lord, जब प्रोबेशन कंफर्म किया जाता है, वहां भी डीजे की राय मानी जाती है। हमारी my lord एनुअल एसीआर लिखी जाती है, उसमें डीजे को कंसल्ट किया जाता है। खिलाफ क्या रिलीफ मांग रहे हैं आप इसमें? डीजे के खिलाफ कोई रिलीफ नहीं हुआ। बस तो फिर उसको डिलीट करो पहले और इसको भेजते हैं सिंगल बेंच के सामने। और डीजे नहीं, जिस कोर्ट में वो अपीयर हो रहे हैं उन जज की एसीआर तैयार, वो जज एसीआर तैयार करते हैं, डीजे नहीं सब। My lord, as per I am quoting as per rules, my lord, rules ये कहते हैं, आप रूल्स देखें एक बार। जिस कोर्ट में वो अपीयर होंगे वो कोर्ट का प्रिसाइडिंग जज जो है वो एसीआर में। my lord, रूल्स देखें इसमें, इसमें रूल में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की बात करी गई है। अब वो किस कोर्ट में जा रहे हैं, दैट इज, आप रूल्स देख लीजिए एक बार। आप देखें मैडम, जैसे आप रूल 19 पेज 29 पे देखें, my lord, रूल 19 प्रोबेशन एंड कंफर्मेशन। ठीक है, पास द ऑर्डर लिस्ट my lord, I pray, अच्छा और देख के करते हैं ऑर्डर, देखना पड़ेगा। आधा अधूरा रूल लगाया आपने। my lord, I have पूरा been, रूल निकालेंगे अभी, देखेंगे। my lord, I have been rewarded for my impeccable integrity and sincerity, my lord। हम ये थोड़ी बोल रहे हैं कि केस डिसमिस कर रहे हैं आपका। हाँ, मिल्टे ने बोला वो देखना पड़ेगा पहले। वैसे तो क्लियर है रूल्स, आपने रूल भी नहीं चैलेंज किया कि अगर वो रूल चैलेंज करते कि ये मतलब- असाइन करना जरूरी है। my lord, रूल्स ऑलरेडी इंटरप्रेट कर चुका है दिस ऑनरेबल कोर्ट एंड द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, my lord। क्या किया उसको उन्होंने बोला my lord कि द टर्म, अपना जो मध्य प्रदेश का रूल है वो क्या सेटिस्फाइड हो गया या अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर हो गया क्या? नहीं, उसको अल्टावेट डिक्लेयर नहीं किया my lord, लेकिन कोर्ट ने उसको ये कहा है कि इसका जो मतलब है, इसका मतलब ये है कि द गवर्नमेंट ये देखा मैं, अपने मध्य प्रदेश के रूल्स तो थे ही नहीं, यूपी के रूल्स थे वो। तो मतलब उसके बाद डीबी ने हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट की डीबी ने भी उसको अपने रूल्स को इंटरप्रेट किया हुआ है my lord। क्या किया हो अपलोड हाँ, कर ये है my lord, देखिए उसमें मैंने बताया जो आपका पद्माकर पांडे वाला केस है my lord एंड द राजन तिवारी केस। उसमें रूल्स चैलेंज हुए थे। हाँ, सेम रूल्स है my lord, सेम रूल्स है। सेम रूल्स तो होंगे, उनको इंटरप्रेट, चैलेंज हुए थे कि नहीं? नहीं चैलेंज नहीं हुए थे my lord, लेकिन उनको इंटरप्रेट किया गया my lord। देखिए, आपको फर्क समझ में आना चाहिए। रूल को चैलेंज करके उसको अपहेल्ड करा लेना वो बात अलग है। कोर्ट डज नॉट फाउंड दोज रूल्स अल्ट्रा वायरस my lord, लेकिन उनका क्लियर इंटरप्रिटेशन कोर्ट ने दिया है my lord। The state government has assigned the reason that as per the complaints received by the state government from the district magistrate, the working of petitioner was not found satisfactory. कहाँ पे मैडम? It means that reasons were assigned. नहीं, वेयर मैडम? Of Rajen Tiwari alias Raju. Even after that my lord, the case was allowed in favor of the petitioners my lord। तो यहाँ रीजंस को चैलेंज नहीं किया गया, ये रूल को चैलेंज नहीं किया गया कि मतलब reasons रूल को चैलेंज करना आवश्यक नहीं है मैम my lord, रूल्स को चैलेंज करना उसको ऑलरेडी इंटरप्रेट कर रहा है कोर्ट। सपोज अगर आप बोल रहे रूल को चैलेंज नहीं करना तो वी हैव टू गो बाय द रूल, वर्डिंग्स ऑफ द रूल। द इंटरप्रिटेशन ऑफ द रूल्स my lord, द व्हाई शुड वी इंटरप्रेट? मतलब ऑनरेबल विदाउट असाइनिंग एनी रीजन। आप पढ़ो ना उसको फिर से एक बार। my lord, I am not saying that they should assign any reason, what I am saying that there must exist a cogent reason, though that reason is not assigned to me। मुझे मत बताइए क्या कारण है। It's not required to be disclosed। हाँ, that is not required to be disclosed, but there must be a reason my lord। तो आप डिलीट करो, इसमें लिखिए डायरेक्ट काउंसिल फॉर द पिटिशनर इज डायरेक्टेड टू डिलीट रेस्पॉन्ड नंबर 2 द डिस्ट्रिक्ट जज। हाँ है इसमें इसमें है क्या? रेस्पॉन्ड नंबर 2 डिस्ट्रिक्ट जज सागर जी from the array of respondents by filing appropriate application. my lord, The application be filed within 3 days, list in the next week. my lord, much obliged।